Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome, Metropolitan Foundation online classes. This is your IT teacher, Miss Faraz Shaheen. Students, how are you? I hope you all are fine, safe, and healthy at home. I am going to teach you unit number 8, month of January, creating web page using HTML. Month of January, you make the title page, unit number 8, and write the name, creating web page using HTML. My dear students, success has no shortcut. So be responsible, be sincere, and be creative. And I wish that the online classes will be the brightest year of your life. So let's start unit number 8. Nowadays, getting education has become easier because of the e-learning. We can gain a lots of knowledge through the articles and videos posted on internet. So let's start e-learning Metropolitan Foundation YouTube channel. In unit number 8, we will learn about the introduction of HTML, tags, headers, paragraphs in the HTML, line breaks, formatting text, and in formatting text, changing font size, changing font color, making the text bold, italic, and underline. Introduction of HTML. What is HTML? HTML Hypertext Markup Language. The full form of HTML Hypertext Markup Language. Internet is the network of the computer networks that connected millions of computers around the global. The individual computers are connected to the some powerful computers called the server. स्टूडेंट इंटरनेट के ऊपर काम करने के लिए हमें जो नेटवर्क ज़रूरी है और उससे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं और वो एक पावरफुल कंप्यूटर जो कि सर्वर कहलाता है, उस सर्वर के ऊपर स्टोर होती है फाइल्स, इंफॉर्मेशन फाइल्स, वो कहलाती है वेबसाइट्स. These files या वेबसाइट्स कैन बी एक्सेस बाय द डिफरेंट यूज़र. जो हर जगह डिफरेंट यूज़र्स हमारे हैं जो कि डिफरेंट वर्ल्ड की अलग अलग सिटीज़ के अंदर हैं, कंट्रीज़ के अंदर हैं, वो सब क्या करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और इन वेबसाइट्स को सर्च करते हैं. तो जो सर्विंग करने वाला कंप्यूटर है वो सर्वर कहलाता है और बाकी लोग वो वेबसाइट्स को देखते हैं. वेबसाइट्स कंटेन डिफरेंट पेजेस कॉल्ड द वेब पेजेस. द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड द होम पेज. द होम पेज कंटेन्स लिंक्स टू अदर वेब पेज. इसी में मैं बताती हूँ कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन to the web browser for formatting and layout the web page on the computer. अब HTML को बनाया किसने? The Tim Lee developed the HTML standard in 1989 के अंदर टिम ली ने डेवलप किया HTML को एंड इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1991. और वर्ल्ड वाइड वेब जो पहली बनी वो 1991 में बनी. हिज आइडिया वाज टू अलाउ द कंप्यूटर्स all over the world to talk to each other using the language that is designed. The World Wide Web has changed the millions of lives in a very short time. Let's start explanation. Hypertext markup language. It is a set of instructions given to the web browsers for formatting and layout of the web page on the computer. HTML contains commands that are used to compose the page and specify how the text and graphics, headings, etc. look like. Now here I explain you basic concept of web. World Wide Web, WW. What is the meaning of WW? World Wide Web. It is the information system on the internet which allows documents to be connected to the other document
Documents by the hypertext links enable the users to search for the information by moving from one document to another. World Wide Web is basically a system of the internet server that support the specially formatted documents. अब ये बात समझने की है कि हम ये HTML पढ़ने क्यों जा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। वेब एप्लीकेशंस के अंदर बेसिक जो है वो हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं, एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से ज्वाइन करते हैं। अब आप जब भी कभी गूगल पे या इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर जब भी आप कनेक्ट होते हैं तो आपने देखा होगा कि क्लाइंट और सर्वर, बार बार ये वर्ड आपने सुना भी होगा। और आप देखेंगे यहाँ मैंने आपको शो भी किया है कि छोटे छोटे हाथ बने हुए, कुछ एरो बने हुए, और ये कुछ आपको वेब एड्रेस भी नज़र आ रहा है, और इसमें लिखा हुआ भी है HTTPS www.apply.com, www.google.com, www.microsoft.com, www.amazon.com। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या। बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ये हाइपर मार्कअप लैंग्वेज लिखी हुई है, और ये क्यों लिखी हुई है, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए। ये हाथ जो आपको नज़र आ रहा है छोटा सा, इसको ही आप क्लिक करते हैं ना, आप देखेंगे जब कभी भी आप जब मैं प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगी तो आप देखिएगा कि छोटा सा हैंड बना हुआ होता है, आप उसी पे जाकर क्लिक करते हैं तो अंदर से एक और दूसरा पेज खुल जाता है। तो एक डॉक्यूमेंट्स दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट कैसे होता है ये हमने समझ लिया। अब दूसरा ये कि ये जो है वेब डिज़ाइनिंग जो है ये बड़ा लंबा और वास्ट सब्जेक्ट है। अगर मैं ये कोशिश करूं कि एक वीडियो में मैं ऐसे समअप कर सकूं तो ये तो नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन भी है और पॉसिबल भी नहीं है। दूसरा ये कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको समझ में आ जाए तो काफ़ी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए मैंने हल्की फुल्की चीज़ें ली हैं कि हम जो है वो HTML जब लिखना शुरू करेंगे तो उससे पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम कैसे समझेंगे किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो मैं आपको अभी समझा रही थी। आप देखेंगे कि आप कभी भी कोई भी किसी भी वेब डिज़ाइनिंग को आप देखते हैं तो आप क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट जब ब्राउज़र करता है किसी भी वेब पेज को या अपनी रिक्वेस्ट को यूजिंग अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, तो उसे हम HTTP कह रहे हैं। सर्वर विल रिस्पॉन्स एंड क्लोज द कनेक्शन हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंदर। हाइपरटेक्स्ट लिंक और हाइपरलिंक contains a reference to the specific web page that you can click to quickly open that web page या website. A documents on the web is called the web page, identified by a unique address. हम कभी भी देखेंगे कि हमें एड्रेस लिखना पड़ता है, हम एड्रेस बार पे जाकर एड्रेस लिखते हैं। यूनिक एड्रेस होता है हर एक वेब पेज का। ये दो एड्रेस है वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज अलोकेटर, URL कहलाता है। URL commonly referred to as a web address. A website refers to the location on the internet of the pages and related to files such as graphics files and other files that belong to the company, organization or individual, schools and other thing.
अब आप देखिए पिक्चर के ऊपर ना, क्लिक हेयर, जहाँ पर एक हैंड बना हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एक और पेज पे चले जाएंगे, वहाँ दूसरे हाइपर मार्कअप बने हुए होंगे, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आप तीसरे पेज पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप चौथे पेज पर। इस तरह से आप एक सामने एक होम पेज बना हुआ होता है, उस होम पेज से देखिए एरो पे देखिए, दिस इज़ द हाइपर लिंक। आप देखिए मैंने एरो से शो किया है, ये सब क्या है, हाइपर लिंक्स है। इन हाइपर लिंक्स पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो हम उस दूसरे अनदर पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। इजी पैसास की आप देख लें या दूसरी वेबसाइट्स देख लें, जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये क्या क्या कर रही हैं, ये यूज़र्स को, क्लाइंट को, ब्राउज़र को क्या कर रही हैं, ये एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर कनेक्ट कर रही हैं। एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर कनेक्ट करना ही इसका मेन पर्पज़ है। अब इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कितनी लैंग्वेजेस एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करना आपको समझ में आ गया। अब ये जितनी भी हमने अभी तक बातें समझी हैं, सीखी हैं, इसको डेवलप करने के लिए, इसको बनाने के लिए, आपको वेब डिज़ाइनिंग कंप्लीट अगर आप सीखें तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगता है, उसका एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो वेब डिज़ाइनिंग करने के लिए मामूली बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, ठीक ठाक आपको लैंग्वेजेस से नो हाउ होना चाहिए। अब मोस्ट और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो आप ये देखेंगे कि इंटरनेट को यूज़ करने के लिए आपने देखा होगा दो आपको इंटरनेट सॉफ्टवेयर नज़र आते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप वेब ब्राउज़ नहीं कर सकते, यानी वेब पेज को आप क्या नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो हम कभी भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ हमारे पास वाईफाई का होना भी ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या होना ज़रूरी है, कंप्यूटर के साथ हमें क्या होना ज़रूरी है, हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होने चाहिए ये दोनों ब्राउज़र्स। अब आ जाता है कि इन ब्राउज़र्स के नाम क्या, अभी बताती हूँ मैं आपको नाम। वेब ब्राउज़र्स और सिंपली ब्राउज़र्स is an application used to access the view websites. Common web browser include Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera and Apple Safari etc. अब आपने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा हम वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर करते हैं, और दूसरा कौन सा करते हैं, सर्च इंजन गूगल यूज़ करते हैं। अब वेब पेज को बनाने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो जावा स्क्रिप्ट है, जावा क्वेरी है, इसके अलावा PHP है, ASP है, रूबी है, बहुत सारी लैंग्वेज है। जावा बहुत यूज़ होती है, SQL बहुत यूज़ होता है, ऑरिकल आप कह लें, ये और CSS है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। देखिए बहुत बड़े बड़े नाम हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, अब बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम कोडिंग कैसे करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर उर्दू में आपसे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दे रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल एक लैंग्वेज है और इसको समझना ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ गए तो आपको कोडिंग करना भी आ जाएगा और बहुत आसान है। देखिए कोई भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, उसे समझना ज़रूरी होता है। सही है, बेसिक चीज़ें होती मामूली हैं, लेकिन जब तक आपको पहले से उसका कॉन्सेप्ट ना पता हो तो आप लिखेंगे कैसे। अब आपने देखा होगा कि विंडोज़ आपके पास 7 है, यानी आपके पास जो हार्डवेयर है उसमें विंडो इंस्टॉल हुई हुई होती है। तो उसमें आपने देखा होगा कि विंडो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, आपके पास विंडो 7 हो, विंडो 10 हो, XP हो, कोई सा भी हो, या पुरानी से पुराना भी आप वर्जन देखेंगे विंडोज़ का, तो आपको नोटपैड एप्लीकेशन ज़रूर नज़र आती होगी। नोटपैड बच्चे बड़ा यूज़ करते हैं और बड़े खुश होकर यूज़ करते हैं, ये कॉमन सी एप्लीकेशन है। लेकिन जो हम HTML की कोडिंग है वो इसी नोटपैड पे करते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है या बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र नहीं आ रही, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल करके भी आप इसे नोटपैड को ले सकते हैं। प्लेन नोटपैड के ऊपर सबसे पहले जो है हम
टैग्स लिखेंगे, स्टार्ट हम करेंगे। तो देखिए टैग्स के अंदर ही आपको समझा दिया गया है कि आपने करना क्या है। इंस्ट्रक्शंस जो है इस टैग्स के अंदर ही दी हुई है। साइड में देखिए आपको ये जो स्क्रीन आपको छोटी सी नज़र आ रही है, आपके पेज नंबर 113 के ऊपर ये आपका नोटपैड एप्लीकेशन ओपन है। नोटपैड एप्लीकेशन को आप स्टार्ट बटन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर के अंदर आप ऑल डालकर ऑल प्रोग्राम के अंदर भी इस एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। जब आपने नोटपैड सर्च कर लिया, नोटपैड को ओपन कर लिया डबल क्लिक करके, और इसका आप क्या करेंगे, एक छोटा सा जब हम शॉर्टकट बना लेते हैं तो आप इसका भी शॉर्टकट बना लीजिए और शॉर्टकट को डबल क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड ओपन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में नोटपैड लिखेंगे। नोटपैड लिखने के बाद नोटपैड जब आपको नज़र आ जाएगा आप बिल्कुल गौर से देखिएगा और उसके बाद आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसका शॉर्टकट बना लेंगे अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आपने शॉर्टकट बना लिया, डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपको वाइट कलर का नोटपैड नज़र आ जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो मैंने दूसरा तरीका क्या बताया कि आप गूगल से नोटपैड सर्च करें और उसे क्या कर लेंगे, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे। अब ये टैग्स किस तरह से हम लिखेंगे, देखिए हाइपर मार्कअप लैंग्वेज जो है आपके डबल कोटेशन के अंदर लिखी हुई है। लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच में लिखी जाती है। द इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट करेक्टर, जो हम करेक्टर लिख रहे हैं उसे क्या कहते हैं, टैग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टैग्स कहते हैं। और वो टैग्स क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन और मार्कअप, और उसमें हम मार्क डालेंगे। ये मार्क क्या है, यही ग्रेटर देन और लेस देन है। The command in HTML are these tags. These tags instruct a browser to receive and display information of graphics in a page. From a separate page, a set of less than and greater than symbols enclose the HTML tags. These are also known the angle brackets. Angle brackets के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और दूसरा क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, उसमें आप क्या लिखेंगे, HTML, और उसको आप क्या लिखेंगे, कैपिटल उसके अंदर लिखेंगे। देखिए नज़र आ रहा है, आप पहले आप क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, फिर HTML कैपिटल में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम जाते हैं अपने दूसरी विंडोज़ के ऊपर। अब आप देखिए 8.2 के ऊपर आपका हेडर्स बने हुए हैं। हेडर्स आर लाइक द चैप्टर हेडिंग्स ऑफ द ब्लॉग। यू कैन यूज 6 डिफरेंट हेडर इन योर वेब पेज, बट यू मे नॉट यूज दैम 3 एट ए टाइम। हेडर टैग इज रिटन एज HN, ये भी फिर लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखा हुआ है HN। इससे पहले आपने देखिए, एक में आपने स्लैश नहीं डाला, गौर से देखिएगा बेटा, दूसरे में आपने स्लैश डाला हुआ है। वेयर N इज नंबर 1 to 6 फॉर एग्जाम्पल। देखिए H और 1 लिखा हुआ है, यहाँ से आप 6 लाइनें लिख सकते हैं। नंबर 1 आपको क्या शो कर रहा है, HN। ये देखिए स्लैश की लाइन भी डली हुई है। देखिएगा, टू ऐड द हेडर्स इन योर वेब पेज डू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। टाइप द HN आफ्टर द बॉडी टैग, फॉर एग्जाम्पल H1। अब ये जो H1 है इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि यहाँ से मैं अपना जो भी वर्ड लिखना है, क्योंकि हम तो अभी 1 by 1 स्टेप ले रहे हैं ना, तो हमारा जो HTML हेडर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्लैश, बैक स्लैश, देखिए HN, ग्रेटर देन लेस देन का साइन, H1 हमने लिखा। H1 लिखने के बाद अब ये है, ये हमारी बॉडी तैयार हो गई। अब यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 के अंदर हमने बॉडी को देखा। नंबर 2 में देखिए, टाइप द कंटेंट ऑफ द हेडर, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है माय वर्ड, तो आप इसको भी डबल कोटेशन के अंदर, देखिए डबल कोटेशन के अंदर लिख रहे हैं, समझ में आ रही है, जैसे कि हम अक्सर लिखते हैं वैसे ही आपने डबल कोटेशन के अंदर इसे लिखा। एंड नंबर 3 में देखिए HN फॉर एग्जाम्पल H1, और फिर आपने उसे क्लोज कर दिया। पहले स्टार्ट किया
टैग से स्टार्ट किया, टैग से स्टार्ट करने के बाद बॉडी, बॉडी के बाद आपने क्लोज कर दिया, स्लैश बैक स्लैश डाला, H1 डाला और डबल कोडिंग के अंदर करने के बाद आपने उसे, आप देखिए दोबारा मैं आपको समझा रही हूँ, आप देखिए पेज नंबर 114 के ऊपर आपकी दो विंडोज़ बनी हुई हैं। हेडर्स के अंदर देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, नोट पैड के ऊपर HTML कैपिटल में लिखना है, किसमें, ग्रेटर देन एंड लेस देन में। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, हेड लिखेंगे। अब ये जो दोनों चीज़ें क्या बता रही हैं कि आपने HTML स्टार्ट कर दी है, और सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, उसको ग्रेटर देन लेस देन के अंदर लिखेंगे, लर्निंग HTML। फिर उसके बाद आपने ग्रेटर देन लेस देन के अंदर लिखा और स्लैश दिया। उसके बाद हेड एंड बॉडी हो गया। उसके बाद आपने अपना पहला क्या लिखा, माय वर्ड लिखने के बाद उसे आपने बंद कर दिया। उसके बाद आपने एंटर, हर जगह पर आपने एंटर को प्रेस करना है। बात समझ में आ रही है? इसे यूज़ करिएगा, देखिएगा ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपने नोटपैड में लिखना है। अब इसका रिजल्ट आपको दूसरे पेज के ऊपर दिखाया गया है। दूसरे पेज के ऊपर आप रिजल्ट देखेंगे, माय वर्ड लिखा हुआ है, और ये क्या कहाँ पर नज़र आ रहा है, इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर। कहाँ पर नज़र आ रहा है, ब्राउज़र के ऊपर। तो इसका रिज़ल्ट आपको इतनी खुशी होगी जब आप ये बनाएंगे और देखेंगे कि आपने ये बनाया और ये वेब पेज आपका अपना है। फिर इस तरह से हम दूसरे नंबर पर 8.3 को अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 8.3 के अंदर है पैराग्राफ इन HTML। अब पैराग्राफ HTML में आप क्या करेंगे कि देखिए, ये इसकी आप 10 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे हेडर्स की, और उसके बाद आपने क्या करना है, पैराग्राफ्स इन HTML को आप देख ले। HTML ऑटोमेटिकली एड्स एन एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर ईच पैराग्राफ। पैराग्राफ इन HTML में ऐड करने के लिए पैराग्राफ को P डबल कोटेशन में लिखना है। ये टैग है। टैग क्या है, पहचान। टू ऐड अ पैराग्राफ इन योर वेब पेज डू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। टाइप द P डबल कोटेशन के अंदर लिखना है, फिर टाइप द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ, फिर टाइप लिखना है, फिर बैक स्लैश और P लिखने के बाद इसका मतलब है ये बीच की लाइन आपकी क्लोज हो गई। अब आप इसका रिजल्ट कहाँ पर देखेंगे, इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर देखेंगे। You can add alignment in your paragraph. You have to use P align, डायरेक्शन आपने देनी है, where the direction is left है, right है, इसको भी आपने डबल कोटेशन के अंदर ही लिखना है। अब आ जाता है लिंक ब्रेक्स के ऊपर। बेटा इसको करिएगा प्रैक्टिस। 8.4 के ऊपर आप आ जाइए। You have to force the line break in HTML. This means that you need to use a tag to tell the browser that a new line should begin. यहाँ पर आप देखिए HTML, फिर आपने स्टार्ट करना है बिगिन एंड न्यू लाइन BR से, और उसे भी किस में, ग्रेटर देन एंड लेस देन के अंदर लिखना है। टैग इज़ यूज, टैग हर बार यूज़ होगा। टू ऐड द लाइन ब्रेक्स टाइप द BR वेयर यू वांट टू लाइन ब्रेक टू द, आपको ये बताना है कि कहाँ पर आपकी लाइन को ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल टाइप BR एट द एंड ऑफ द लाइन, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। अब आप देखिए कि आपने पहले माई वर्ड लिखा, उसके बाद आपने लिखा कि हमें HTML का हमारा पहला एक्सपीरियंस है, और फिर हमने लाइन को ब्रेक दिया। देखा आपने? आप देखिए दोनों पिक्चर में देखिए आप कि लाइन को किस तरह से ब्रेक किया गया है। अब आपको याद करने वाली बात क्या है कि BR इज़ द गुड option for the short line of the text that appear on the after another, as it leaves no space at the beginning of the line. यहाँ पर आपको ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि आपने क्या नहीं करना है, स्पेस नहीं देना है। और आप ये देखिए जो ये लाइन लिखी हुई है उसमें स्पेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉन्ट को कैसे चेंज करेंगे। पेज नंबर 115 के ऊपर देखिए 8.5 फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। आपको पता है कि आपको चेंज करना है फॉर्मेट, तो आपने देखिए यू कैन यूज़ द
फॉर्मेटिंग इन HTML यूजिंग द फॉन्ट, FONT फॉन्ट को आपने कैपिटल में लिखना है, लेस देन ग्रेटर देन टैग के अंदर विद द डिफरेंट एट्रीब्यूट से। चेंजिंग फॉन्ट, अब आपने चेंज करना है किसी भी फॉन्ट को, तो आप क्या लिखेंगे, फॉन्ट का वो नाम लिखेंगे। देखिए, यू मस्ट चूज द फॉन्ट ऑफ योर टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले डबल कोटेशन के अंदर फॉन्ट लिखेंगे। फॉन्ट लिखने के बाद आपने जिस फॉन्ट टेक्स्ट को आपने डिस्प्ले करवाना है उसका नाम लिखेंगे। ये थोड़ा सा देखिए, इससे मुझे एक चीज़ मुझे अपने याद आ जाती है कि जब मैंने HTML कोडिंग सीखी थी तो उस वक्त मुझे बहुत सारी चीज़ें MS ऑफिस की भी बहुत सारी चीज़ें आसानी से याद हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि मैं आप लोगों को कभी कभार बताती हूँ, आप लोग चौंक कर देखते हैं कि मिस क्या बोल रही हैं, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़, नंबर, ये सब मुझे उस वक्त के अभी तक याद है। तो ये चीज़ और भी आपकी पक्की हो जाएगी। यू मस्ट चूज़ द फॉन्ट ऑफ योर टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले केयरफुली वेयर द चूजिंग फॉन्ट यू हैव टू कंसिडर द अवेलेबल ऑफ द सेम फॉन्ट टाइप इन द कंप्यूटर वेयर अनदर यूज़र व्यू द वेब पेज। अब देखिए, इसमें एक चीज़ उन्होंने एक और ऐड कर दी कि आप वही फॉन्ट टाइप यूज़ करेंगे कि दूसरे के कंप्यूटर में भी वो मिल जाए आसानी से। टू चेंज द फॉन्ट डू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, टाइप द फॉन्ट फेस। अब आप देखिए यहाँ पर इक्वल मार्क का साइन हुआ है और फिर आपने डबल कोटेशन में फॉन्ट का नेम लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, फॉन्ट फेस मोनोटाइप, कॉर्सिवा, क्या लिखना है आपने, मोनोटाइप कॉर्सिवा। ये क्या है, ये टैक्स का आपने जो टैक्स लिखना है, जो फॉन्ट लिखना है उसका नेम है, उसका स्टाइल का नाम है। टाइप द टैक्स और फिर आपने क्या करना है, एंटर कर देना है। ये देखिए यहाँ पर आपका फॉन्ट साइज़ नीचे देखिए इटैलिक में चेंज हो गया। मोनोटाइप, ये देखिए मोनोटाइप कॉर्सिवा से चेंज हो गया। नीचे वाली लाइन के ऊपर देखिए, फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। अबव द पैराग्राफ इन नोटपैड एडिटर, नोटपैड एडिटर के ऊपर आप ये सब चीज़ें लिख रहे हैं। अब चेंजिंग फॉन्ट साइज़, अब आपको आ गया होगा समझ में ज़्यादातर बच्चों को कि हमने फॉन्ट साइज़ को भी कैसे चेंज करना है। वैसे ही चेंज करना है तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि हमने मोनोटाइप कॉर्सिवा लिखा, उसी तरह से हम क्या लिखेंगे, फॉन्ट साइज़ लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, डबल कोटेशन में एन लिखेंगे, वेयर एन इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉन्ट, टाइप द टेक्स्ट और फिर एंटर कर देंगे। अब आप देखिए यूज़ ऑफ द फॉन्ट टैग। अब आ जाते हैं हम ये पेज नंबर 116 के ऊपर आपको एक्सप्लेन किया गया है चेंजिंग द फॉन्ट साइज़, और नोटपैड आपको पता है कि किस तरह से ओपन करना है। अब इसके बाद आपने जो बात याद करनी है, यू कैन इवन चेंज द हाइट ऑफ द फ्यू कैरेक्टर्स ऑफ द टेक्स्ट with the font size. There are also the some predefined font, you will learn about them later. आप कुछ दो फॉन्ट साइज़ हैं उनको बाद में द एडवांस आप लेवल के ऊपर जाएंगे, क्योंकि HTML का आपको चस्का अब लग जाना है। जब आप ये करेंगे और जब ये वेब ब्राउज़र पे आपकी ये वेब खुलेगी, ओपन होगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये मैंने लिखा है। और इसका रिज़ल्ट कहाँ आना है, आपके सामने नहीं आना है, वेब ब्राउज़र पे आना है। अब आपने क्या करनी है, ये सब लिखने के बाद आपने फ़ाइल को सेव करना है। अब सेव के लिए आपको पता है कि आपने क्या देना है, लोकेशन देनी है कि कहाँ आपको अपनी फ़ाइल को सेव करना है, और फिर वेब ब्राउज़र पे जाकर आप उस फाइल को ओपन कर लें। ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ चेंजिंग द फॉन्ट कलर। चेंजिंग फॉन्ट कलर, font color is used to change the color of the text. You can even change the color of an individual character. आप अलग अलग को भी चेंज कर सकते हैं, कलर को अलग अलग, और एक साथ भी एक लाइन को भी चेंज कर सकते हैं। चेंज द फॉन्ट कलर, डू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, टाइप द कलर और कलर नेम। अब आपने कलर का नाम भी लिखना है, डबल कोटेशंस के अंदर आपने नेम लिखना है कलर का। टाइप द टेक्स्ट, टाइप द फॉन्ट और फिर उसको एंटर कर देना है। तो आप देखिए कि आपका जो रिज़ल्ट आया, नीचे देखिए, नीचे देखिए रेड कलर के अंदर पेज नंबर 117 के ऊपर देखिए, ये आपको रिज़ल्ट बताया गया है। मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, आपने MS ऑफिस में करा, पावर पॉइंट में करा,
आपने एक्सेल के अंदर किया है, इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन, और कई बार तो बच्चे कहते थे बहुत आसान है ये, लेकिन देखिए यहाँ पर आपने बोल्ड करना है तो टाइप बी को ग्रेटर देन लेस देन में लिखना है, फिर टाइप करना है टैक्स, किस टैक्स में आपने टाइप करना है, फिर आपने बैकस्लैश लिखना है और बी और इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है। फिर आपने देखा इटैलिक को किस तरह से लिखना है, आपको तीनों आप देखिए तीनों आपको दिए गए हैं टाइप्स। आई लिखना है, टाइप करना है, टैक्स लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना है। अब उसका रिजल्ट आप देखिए अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किस तरह से किया गया है, टाइप डबल कोटेशन के अंदर यू, टाइप द टेक्स्ट, टाइप द बैकस्लैश एंड यू एंड ग्रेटर देन लेस देन को बंद कर दें आप। अवॉइड यूजिंग अंडरलाइन अननेसेसरी एज इट मे बी कन्फ्यूज यू विथ हाइपरलिंक्स। देखिए जब आप हाइपरलिंक्स बनाएंगे तो अंडरलाइन जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो इसलिए आप ज़्यादा इसको अंडरलाइन का इस्तेमाल ना करें। बेटा यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग दिए गए हैं, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन। जैसे आप शॉर्टकट कीज़ याद करते हैं वैसे ही आपको टैग भी याद करने पड़ेंगे। अब टैग क्या है, पहला टैग आप देखिए नॉट सपोर्ट इन HTML यूज़, इसके बजाय आपने दूसरा यूज़ करना है ABI, डिफाइंस एन एब्रीवेशन और एन। अगर आपने एब्रीवेशन डिफाइन करनी है तो आप क्या लिखेंगे ABBR। एड्रेस के लिए डिफाइन एड्रेस, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, तो आप किसी भी आर्टिकल का ओनर का, किसी का भी ऑथर का नाम लिख रहे हैं या एड्रेस लिख रहे हैं तो एड्रेस को भी डबल कोटेशन के अंदर, देखिए इसके नीचे दोनों के नीचे अंडरलाइन हुआ है। अच्छा आपने ये देखा कि डबल कोटेशन के अंदर बी डिफाइन किया गया टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, BDI डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए टेक्स्ट को आउटसाइड में दिया गया है। फिर है डबल कोटेशन के अंदर देखिए करंट टेक्स्ट डायरेक्शन देने के लिए BDO दिया गया है। फिर अब इसके बाद दूसरे उसके ऊपर आ जाइए, दूसरे पेज के ऊपर आइए। आप देखिए टैग और डिस्क्रिप्शन को देखिए, डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप। अब डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए आपने कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इसको डबल कोटेशन के अंदर ही लिखना है। डबल कोटेशन के अंदर आपने HTML को लिखना है। जब हम टैग को स्टार्ट करते हैं तो हम शुरू में हेडर और HTML लिखते हैं। टाइटल लिखा डिफाइन अ टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट, बॉडी के अंदर डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, और फिर डिफाइन द HTML हेडिंग्स और डिफाइन द पैराग्राफ, इंसर्ट द सिंगल लाइन ब्रेक। अब सिंगल लाइन को ब्रेक करने के लिए BI आप लिख रहा है। फिर डिफाइन द थीमेटिक चेंज इन द कंटेंट के अंदर आपने थीमेटिक चेंज जो करना है वो करना है। फिर अगर आप और भी देखेंगे फॉर्मेट तो आपको ये गूगल से आराम से मिल जाएंगे, तो आप उनसे देख सकते हैं। बहुत सारे टैगों को आप याद करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको जब भी HTML लिखनी होगी तो ये टैग याद होंगे, तो आप जल्दी से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को आपने बनाना है वो आप कर लेंगे। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम उसमें पिक्चर लगाना या और जो चीज़ें लगाना है जो एडवांस है, पहले आप यहाँ तक समझ लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको वो भी बता देंगे। अब आ जाते हैं कि मैंने एक छोटी सी क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा है आपका इसमें, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो स्टूडेंट ये मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं आपके कि HTML स्टैंड फॉर, अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है वो आप लिख लीजिए। फिर है नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। अब आपको पता है, अब आप बहुत जल्दी से इसको कर लेंगे। अब आइए नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 है करेक्ट द HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग इज़, ये भी आप कर लेंगे आराम से। मार्कअप लैंग्वेज टेल द वेब ब्राउज़र, क्या कहती है मार्कअप लैंग्वेज वेब ब्राउज़र्स को, ये भी आपको पता है। अब आ जाता है नंबर 5 पे, वेब पेज स्टार्ट विद द विच
अदर फॉलोइंग टैग्स किसके अंदर वेब पेज को स्टार्ट किया जाता है, वेब पेज को स्टार्ट करने से के ऑप्शंस कौन से, यानी आप वेब पेज स्टार्ट करेंगे तो वो कौन सा टैग है, ये भी आपको मालूम हो, या अब आपको आंसर देखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है कि बेस टैग इज़ डिज़ाइन टू द अपीयर ओनली बिटवीन। अब ये भी आपको आराम से समझ में आ गया। आप देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके आंसर्स भी आपके दिए हुए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले से सॉल्व करना है खुद से। जब आपको बिल फर्ज नहीं आता है, बहुत ऑनेस्टली से आपने करना है। देखिए मैं फिर आपको कह रही हूँ कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ वीडियोस के ऊपर, वो इसलिए कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। क्लास में हम इतने एडवांस लेवल पर नहीं समझा पाते आप लोगों को, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाए। एक छोटी सी मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन भी इसमें रखा है फॉर इंटरेस्टिंग, कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। अब आप इसे करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर मैं आपसे कुछ और अगली क्लासेस के अंदर क्वेश्चंस करूँगी और आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दूंगी। सही है स्टूडेंट? यहाँ आई फिनिश माई वीडियो। नाउ आई नो वेरी वेल कि यू विल बी लर्न लिटिल बिट HTML to see my video. Till then, Allah Hafiz. I miss you. I miss you. I miss you a lot. I am giving you tag missing school days. Okay? अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। जल्दी ही हम आपको अपने स्कूल में देखेंगे, ये मेरी दुआ है। अच्छा, एक कोटेशंस को मैं अभी करना चाहूँगी आपके साथ। स्टूडेंट्स, थम्स अप इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब मेट्रोपॉलिटन यूट्यूब चैनल and give the beautiful comments. Okay, till then, अल्लाह हाफिज़। अच्छे स्टूडेंट्स, ये कमेंट्स देने का मतलब ये नहीं है कि आप बिला वजह में कमेंट्स दें। आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है और आप ये देखते हैं कि इससे इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, और मुझे क्वेरीज़ भी सेंड करिएगा कि मिस हमें यहाँ समझ में नहीं आया। तो ये मेरे लिए मुझे फीडबैक जो चाहिए वो आगे वाले मेरे काम को अच्छा करने के लिए, कि मैं जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रही हूँ तो वो आपको समझ में आ रही हैं या नहीं, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए ये जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए, जो कि किस पर बनी हुई है, HTML पर, वेब पेज डिज़ाइनिंग के ऊपर। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि 9th क्लास के लिए, और इससे मैट्रिक के अंदर भी कंप्यूटर अगर है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो स्टूडेंट, ओके, अल्लाह हाफिज़।